حیدرآباد میں کھلا گٹر ایک اور ننھی جان لے گیا۔ ننھی ملائکہ گھر سے چیز لینے دکان گئی لیکن واپس نہ لوٹی۔ حیدرآباد میں متعلقہ اداروں کی مجرمانہ لاپرواہی نے ایک اور معصوم کی جان لے لی۔ پیٹ آباد مہاجر مسجد کے قریب 6 سالہ ملائکہ کھلے گٹر میں گر گئی۔ اہل محلے کی کوشش کے باوجود بچی کو بروقت گٹر سے نہیں نکالا جا سکا، جس کے باعث پانی بچی کی پیٹ میں بھر گیا۔ بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بچی جان پر نہ ہو سکی۔ اس سے قبل بھی اس قسم کے واقعات میں معصوم بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں، لیکن عوامی خدمت کے دعوے دار متعلقہ اداروں اور منتخب نمائندوں کے کان پر جو تک نہ رینگی۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام، ڈرائیورز کی ذرا سی غفلت ٹریفک حادثات کا سبب بن گئی۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ دیپالپور میں تربت وین نے سائیکل سوار کو کچل ڈالا، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مرید میں تیز رفتار وین بے قابو ہو کر الٹ گئی، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ مالاکنڈ چکترا موٹر وے پر وین تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، ٹریفک حادثے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ ہری پور میں مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹھل حمزہ میں تیز رفتار وین بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکار نے شدید زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ بھارت نے سرحدی دہشت گردی کے بعد آبی دہشت گردی شروع کر دی۔ ڈسکا کے مقام پر نالہ 1 میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ کوٹلی مرلا کے مقام پر نالہ 1 میں پڑنے والے 2 شگاف بند نہیں ہو سکے، دھان اور چارے کی فصل تباہ ہو گئی۔ بھارت آبی دہشت گردی پر اتر آیا۔ بھارت سے آنے والے نالہ 1 میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دسکا کے کوٹلی مرلا کے مقام پر گزشتہ روز 2 شگاف پڑ گئے جو آج دوسرے روز بھی بند نہ کیا جا سکے، جس کے باعث فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب آنے سے دھان، چارے اور سبزیوں کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ کھیتوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کے باعث مویشی بھوک کا شکار ہیں۔ راستے بند ہونے کے باعث کسانوں کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے۔ نالہ 1 میں 1476 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جو گنجائش سے کہیں زیادہ ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بنیادی سہولیات سے محروم بنو کے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈیرہ بگٹی کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جدید دور میں بھی بنو کے عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بنو میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ منڈان قبیلے کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ مظاہرین نے سڑک کی تعمیر نو سمیت گیس کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ادھر ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے سڑک پر آگ جلا کر بگٹی کالونی روڈ بند کر دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مقررہ اوقات کار پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ حیدرآباد میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور خراب ٹرانسفارمرز کی مد میں ہیسکو کی جانب سے ہزاروں روپے طلب کرنے کے خلاف لطیف آباد میں احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے جان زیب علی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور خراب ٹرانسفارمر کی مد میں ہیسکو کی جانب سے ہزاروں روپے طلب کرنے کے خلاف لطیف آباد میں احتجاجی مظاہرے و دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ ٹرانسفارمر کی مرمت درستگی کے نام پر ہیسکو کا عملہ 50,000 روپے مانگ رہے ہیں، جبکہ ہم باقاعدگی کے ساتھ بجلی کا بل بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ 4 دن سے خراب ٹرانسفارمر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ 5 دن سے ہمارا جو ہے پورا لائٹ بند پڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے نہ سننے والا ہے، جب دیکھے گا تو سنے گا۔ صبح سے ہم لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک CN SDO یہ لوگ کہتے ہیں 20,000 روپے لے آؤ، 20,000 روپے لے آؤ۔ یہ کس کو جا رہے ہیں پیسے؟ کہ جو ہے نا منظور سمرو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیدرآباد کی عوام چور ہے۔ بھائی جو چور ہے آپ اسے پکڑو، کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ آپ خود بھی آپ کے بندے خود بھی شامل ہے یار۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ سرکل 1 آپریشن ہیسکو منظور سمرو حیدرآباد کی عوام کو چور کا لقب دینے والے خود چوروں کے سردار ہیں۔ بجلی چوری اور کنڈا سسٹم میں ہیسکو کے عملے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ شہریوں نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور ٹرانسفارمر کی مد میں ہزاروں روپے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ کیمرامین مانی پٹھان کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز حیدرآباد۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، غریب عوام ریلیف سے محروم ہو گئے۔ ٹینوجام کے یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا اور چینی غائب، انتظامیہ کا کچھ پتہ نہیں۔
टंडो जाम यूटिलिटी स्टोर पर एक माह से आटा और चीनी नायाब दुकानदारों ने गरीब आवाम को लूटना शुरू कर दिया। महंगाई दिन ब दिन उरूज पर। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने से मैसूर। महंगाई ने कमर तोड़ दी। आटा 65 से 70 रुपए फी किलो बिकने लगा। चीनी 100 रुपए किलो बिकने लगी। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, जबकि आटे का थैला 20 किलो का 1350 से 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा। जबकि फ्लोर मिल मालकान का कहना है गंदम की खरीदारी महंगी है, जिसकी वजह से आटा महंगा है। हुकूमत अपने मुकर्रर रेट पे गंदम फरोख्त करे तो अपने मुकर्रर रेट पे आटा फरोख्त हो सकता है, जबकि चीनी का कट्टा होलसेल में 4500 से 4600 रुपए में फरोख्त हो रहा है और फी किलो 95 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फूड कंट्रोल अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। हुकूमती लिस्ट पर कोई भी चीज दस्तयाब नहीं है। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए और गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर रिलीफ न मिल सका। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। क्या आम आदमी के अब निवाले भी छीन लिए जाएंगे? आखिर कब तक अवाम इन माफियाज के रहमो करम पर रहेंगे? कब रोटी का वजन पूरा और कीमत कम होगी? जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। रोटी का वजन कम, कीमत ज्यादा। गरीब कब तक निवालों को तरसेंगे? अमीर शहर की आंखें कब खुलेंगी? कोई तो 2 वक्त की रोटी का जामिन होगा, लेकिन कौन? जरी मुल्क में गंदम का हसूल भी गरीब के लिए मसला बन गया। लगता है नान भाइयों की मनमानी गरीब के मुंह से निवाला छीन लेगी। रोटी का वजन कम और कीमत पहुंच से बाहर होने लगी। पिशावर में रोटी 10 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। आखिर कब और कैसे जान छूटेगी इस माफिया के चुंगल से? रावलपिंडी के नान भाइयों ने भी कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। नान भाई कहते हैं जब उन्हें गंदम और आटा ही महंगा मिलेगा तो वो कैसे आवाम को सस्ती रोटी फराहम कर सकते हैं? आखिर महंगा होता हुआ इस अनाज का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जहनों में गर्दिश करने लगा। किसी भी जरी मुल्क में अजनास की ही किल्लत होने लगे तो शहरी कहाँ जाएंगे? जो गरीब रोटी नहीं खरीद सकते वो मार्केट्स में महंगे दामों बिकने वाली सब्जियां और फल कैसे खरीदेंगे? महंगाई में पिसते अवाम मजीद आजमाइश में पड़ गए। एलपीजी की मुल्क में शदीद किल्लत पैदा होते ही कीमतें भी दुगनी हो गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कितना इजाफा हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। अवाम अभी कोरोना और महंगाई के इम्तिहान से पूरी तरह निकल ना पाई कि एक और मुश्किल आन पड़ी। इधर एलपीजी की किल्लत से बहरान पैदा हुआ, उधर मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने रातों रात कीमतें बढ़ा दी। तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई बंद होने के बायस एलपीजी की कीमतों को पर लग गए। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। नए इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सबब तफ्तान बॉर्डर से गैस की सप्लाई बंद होना बताया जा रहा है। वजह कुछ भी हो, ये बात तय है कि कीमत आवाम को ही चुकाना पड़ेगी। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर कोहाट का 4 माह में तबादला ना इंसाफी है। ताजर बिरादरी समाजी हलकों समेत कोहाट के अवाम ने आला हुकाम से फौरी तौर पर तबादले के ऑर्डर की मनसूखी का मुतालबा कर दिया है। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। कोहाट का 4 माह के अंदर अंदर तबादला कोहाट की आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। कोहाट के आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा ज्यादती है। तो मेरी एक गुजारिश है सीएम साहब से कि वो इस फैसले पे खुदारा सोच करें। कोहाट के अवाम का कहना है कि कुछ मफाद परस्त लोग सियासी मुदाखलत करके अपने मकासद हल करने के लिए किस्म किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काम करने वाले ईमानदार और फर्जशनास ऑफिसर को हमेशा से सजा का खिमाजा भुगतना पड़ रहा है। तो लिहाजा अब ये 4 महीनों में इनको तब्दील करना, इनकी कड़ियाँ कहाँ मिलती है, ये एक साजिश की कड़ी है। और इनको मैं मुतालबा करता हूँ कि पीके सीएम से, वज़ीर आला से कि वो इनको अपनी सीट पर बहाल करे। कोरोना के हवाले से उनके इकदाम जो थे वो तारीखी थे। कोहाट में जो प्लाजे हैं उनमें अरसे दराज से दुकानें बंद पड़ी थी और उनका एक्शन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वो एक्शन किया, करोड़ अरबों रुपए कोहाट को फायदा दिया। इंसाफ की हुकूमत से कोहाट की आवाम बाजार सदूर, ताजिर एक्शन कमेटी, कोहाट चैम्बर और समाजी तंजीमों ने उन्हें इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने फैसले को उम्मत से गद्दारी करार दे दिया। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका का जो शार है
मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के साथ साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने के ऐलान के बाद पूरी उम्मत मुसलमान में मुत्तहिदा अरब इमारात के फैसला के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। जमात इस्लामी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के फैसला के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। इस दौरान जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर चौधरी असगर अली गुज्जर और जिले अमीर चौधरी मुबश्शिर नईम का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था, और जो मुआहदा UAE और इसराइल के दरमियान हुआ है उसकी भरपूर मुखालफत करने के लिए हम आए हैं और लोगों को ये बताने आए हैं कि मुसलमान होने के नाते से क़िबला अव्वल की आज़ादी तक हम उनसे किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं चाहते। आज यहाँ पे इस मुजाहरे का इंतज़ाम किया गया है और इसका मकसद यही है कि जो UAE और इसराइल के दरमियान मुआहदा हुआ है ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी नहीं है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चिश्तिया में अंजुमन अड़तियान गला मंडी के ऑफिस को मुंतकिली पर तमाम अड़तियान सरापा एहतजाज बन गए। राना इमरान रिपोर्ट करेंगे। में पाकिस्तान के बनने से पहले और बाद में आज तक चलने वाली गल्ला मंडी, जिसको पंजाब में कपास की आला क्वालिटी और आला किस्म का खल बनोला पंजाब समेत पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भेजने का शरफ भी हासिल है। तमाम मामलात को देखने के लिए बनाई जाने वाली मार्केट कमेटी के दफ्तर को चंद सियासतदानों की इमा पर एक सब तहसील डारावाला में मुंतकिल करने की शदीद अल्फाज में तमाम आड़तियान ने मजम्मत की है। सबसे पहले मैं मार्केट कमेटी गल्ला मंडी चिश्तियां का डेजिग्नेशन खत्म करने का और मार्केट कमेटी गल्ला मंडी डारावाला के नीचे करने पर मैं इसकी शदीद लिहाज से मजम्मत करता हूँ, बल्कि शदीद एहतजाज करता हूँ। पहले मियाँ रियाज अहमद खान बडेरा मार्केट कमेटी चिश्तियां और मैं रफी साहब मार्केट कमेटी चेयरमैन सदर को मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि हमारा छीना हुआ हक वापस किया जाए। और इसके साथ मैं सूबा महाज जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब ताहिर बशीर टीमा से मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को विड्रा करने में अपना सियासी रोल अदा करें। गल्ला मंडी चिश्तियां एक मुनज़्ज़म अदारा है, हम लॉ बेइंग लोग हैं, सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट चिश्तियां से होता है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना भी जानते हैं। अगर हमारा ये नोटिफिकेशन वापस ना हुआ तो गल्ला मंडी चिश्तियां तमाम अंजुमन ताजरान, पोकला हजरात और जैली तंजीमों के साथ मिलकर शहर का मुकम्मल लॉकडाउन करेगी। कैमरामैन टीम के साथ राना इमरान अफजल, सच न्यूज चिश्तियां। हुकूमत का पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले में लाखों बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इंसदाद पोलियो का एक कतरा आपके बच्चों का पूरी जिंदगी महफूज बनाने का जरिया है। मुल्क में फिर इंसदाद पोलियो का मिशन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब और सिंध में भी मुहिम जारी है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जमान इंसदाद पोलियो मुहिम के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर अजला में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए भी दी जाएगी। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से छुटकारा दिलाएं। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं, इसलिए एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में वायरस के मजीद 747 केसेस रिपोर्ट हुए और 2,88,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। कोरोना का मुकम्मल खात्मा जरूरी, एहतियात अभी लाजिम है। मजीद 747 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के अंदर मजीद 9 अमवात हुई, जिससे जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,162 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का मजीद कहना है कि 747 केसेस रिपोर्ट हुए और यूं कोरोना मरीजों की तादाद 2,88,047 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 95,203 और सिंध में 1,25,632 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 35,091, बलोचिस्तान में 12,144, इस्लामाबाद में 15,346, गिलगित बल्तिस्तान में 2,452 और आजाद कश्मीर 2,179 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,65,624 मरीज शफायाब हो गए, लेकिन 768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अवाम के लिए एहतियात जरूरी है क्योंकि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। लैया के इलाका फतेहपुर के कातिल MM रोड पर बढ़ते हादसात पर काबू पाने के लिए सड़क की तामीर-ए-नौ का ऐलान कर दिया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे चौधरी शफीक।
MM रोड पर आए रोज बढ़ते हादसात और कीमती जानों के ज़िया पर साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी इनामुल हक एडवोकेट ने फतेहपुर से अड्डा 217 तक अपने जाती अखराजात पर रोड की मरम्मत का ऐलान कर दिया। चौधरी इनामुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 50 लाख रुपए से कल से काम का आगाज कर दिया जाएगा। मेरी एम्बुलेंस सर्विस 10 साल से जारी है, तो मुझे अंदाजा है कि इस MM रोड और कातिल रोड का जो जिसपे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और करोड़ों में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये इनिशिएटिव लूं। इसकी पता नहीं कब गवर्नमेंट की ग्रांट आएगी कि हम खुद अपनी मदद आपके तहत फतेहपुर से 217 अड्डा तक जहाँ तक हमारी हदूद है, फतेहपुर से करोड़ों जहाँ तक हमारी हदूद है, वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर रिपेयरिंग कराई जाए, रोड्स की रिपेयरिंग कराई जाए, क्योंकि कीमती जानों का नुकसान ना हो सके। शहरियों की जानब से चौधरी इनामुल हक के इस इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। कुदरती हुस्न से मालामाल कोहाट की वादी बंगश खूबसूरती में अपना अलग मकाम रखती है। सावन के महीने में वादी की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। वादी बंगश जन्नती नज़ीर सियाहों और कुदरती मंजर कशी के दीवानों के लिए खसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दूर दराज से मन चले इस वादी का रुख करते हैं। हल्की बारिश हो, मौसम खुशगवार हो, सरसब्ज व शदाब मनाजिर डूबकर अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से निजात हासिल करते हैं। हुकूमत अगर जन्नती नज़ीर वादी बंगश पर तवज्जो दे तो न सिर्फ सियाहती मुकाम की हैसियत हासिल कर सकता है, बल्कि जनूबी अजला कितने रंगीन और शादाब हैं और ये इलाके किस हद तक पुरामन हैं। ये पैगाम भी उन हलकों तक पहुंच सकता है जो इन अजला के बारे में मनफी राय रखते हैं। शदीद हब्स और गर्मी में भी वादी बंगश मोतदिल आबो हवा, सरसब्ज व शादाब पहाड़ी सिलसिलों और पुरशिकवा मनाजिर की अमीन है। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। तीसरा PPP क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। तीसरे PPP क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच फख्र सुल्तान खेल क्रिकेट क्लब और ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब के माबेन खेले गई, जिसमें फख्र सुल्तान खेल क्रिकेट क्लब ने पहले खेलती हुई मुकर्रर ओवर में 116 रन बनाए। ब्राइट स्टार ने जवाबी बैटिंग करते हुए मुकर्रर हदफ 9 ओवर में हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौका पर तमाशाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीबी तकसीम इनामात से खिताब करते हुए साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद जमीन खान विकेट ने कहा, खेल कूद बेहतरीन इंसान नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है और कैरम की सरगर्मियों से नौजवान नस्ल बुरी सोबत से बच सकती है। उन्होंने कहा कि इलाके के नौजवानों के लिए खेल के लिए इंशाअल्लाह एक बड़ा ग्राउंड बनाई जाएगी। मौका पर मोहम्मद जमीन खान विकेट ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम की, जबकि कमेटी के अरकान सरदराज खान, खान वजीर, मोहम्मद जेब और पारमान अली अनवर सैद के लिए 20,000 रुपए नकद इनाम, जबकि नौजवानों के लिए किट्स की फरहमी का भी ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, लुकमान मंडा, लोअर। आम का सीजन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन लिया के इलाके पहाड़पुर के किसान ने एक ऐसे आम का पौधा लगाया जो अब पकने को तैयार है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और आजकल आम का सीजन अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। ऐसे ही पहाड़पुर के किसान ने एक ऐसा आम का पौधा लगाया है जो लेटेस्ट आम कहलाता है। संगलाख बग्गू गोशा के नाम से पहचाने जाने वाला एक ऐसा आम है जो 15 अगस्त से पकना शुरू होता है और 15 सितंबर तक पकता और बिकता रहता है। इसकी खूबी यह है कि ऊपर से बगैर येलो नजर आने वाला आम अंदर से हल्का सुर्ख रंग का होता है। इसका लाजवाब जायका और खूबसूरती इतनी होती है और कुदरत की तरफ से इंसान के लिए अनमोल तोहफा है। ये आम संगलाखी आम और फार्म में ये बग्गू गोशा आम है। देखने को येलो कलर का है, लेकिन आप इस आम को जब काटेंगे तो रेड कलर इसका जो है देखने को मिलेगा। ये आम 15 अगस्त से तैयार होना शुरू हो जाता है और 15 सितंबर तक पकता रहता है और मार्केट में बिकता रहता है। ये आम एक खुश जायका और मजेदार आम है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की भलाई और राहत के लिए बेशुमार फल पैदा करना अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया।
जब गांव देहात आबाद थे तो मोहल्ले भर की रोटियां बहुत कम मुआवजे में मिल जाया करती थीं। जब से देहात वीरान हुए तो तंदूर की हसीन रिवायत भी दम तोड़ गई। ताहम जिसे अम्मा अजीज आज भी इस कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। ये उन दिनों की बात है जब देहात के गांव आबाद थे और जहां मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंदों का एक एक घराना भी मौजूद होता जो अहले मोहल्ला के लोगों के जरूरतन काम आता। इन्हीं में से एक घर दाई का भी होता था जो इलाका भर में बच्चों की पैदाइश के वक्त डॉक्टरनी का काम करती और आम दिनों में मोहल्ले भर की अपने तंदूर पर थोड़े से आटे की एवज रोटियां लगाती। जहां मोहल्ले की खवातीन इकट्ठी होकर दुख सुख बांटा करती और रोटियां पकवाकर घर की राह लेती। जब से देहात के लोगों ने शहरों का रुख किया तो देहात की कई दीगर हसीन रिवायत के साथ तंदूर की ये रिवायत भी दम तोड़ गई और देहात वीराने का मंजर पेश करने लगे हैं। ताहम अम्मा अजीज ने शहर के एक कोने में आज भी इस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है और छप्पर होटल के नाम से इंतहाई कम पैसों में अहले मोहल्ला और मुसाफिरों को खाना खिलाती हैं जिसका जायका बिल्कुल घर के माहौल जैसा होता है। अम्मा अजीज अपने तंदूर से एक वक्त में 2 काम लेती हैं। तंदूर गर्म करते वक्त उसी आग पर पहले सालन तैयार कर लेती हैं और फिर रोटियां पका लेती हैं। दोपहर होते ही ग्राहकों का रश लग जाता है जहां मुसाफिर इंतहाई कम पैसों में पेट भर के खाना खाते हैं और अहले मोहल्ला घर के लिए सालन और रोटियां पार्सल ले जाते हैं। अम्मा अजीज का कहना है कि मेरी रोटी और होटल की रोटी में वाज़े फर्क है। साड़ी रोटी तो होटल का ये फर्क है, साडा एक मशीन का आटा बेच होया नीरा मैदा नहीं पकना ते नाले ये पानी वाली रोटी है वो खुशकी वाली रोटी है ओदा कितना फर्क है। ये मैं गद्दी नाल नहीं लाउनी हाथ नाल लाउनी। जिसमें उनका कहना था कि मेरी रोटी वजन और ग़िज़ाइयत के एतबार से होटल की निस्बत मेयारी होती है। ताहम मेरा ये काम इंतहाई मुशक्कत तलब है जो सिर्फ गर्मी के दिनों में होता है, बाकी पूरा साल बेकार घर में बैठकर गुजारना पड़ता है। अम्मा अजीज का कहना है कि मैं दिल की मरीजा हूँ और अपनी कमाई से अपनी बीमारी का इलाज कराने की सकत नहीं रखती। मैं तंदूर से 40 साल हो गया बैठी, जवानी आई बुढ़ेपा की बैठी हूँ। मुश्किल तो मुश्किल काम यो है। हूँ इस दिल की मरीज हाँ 7 साल हो गए तो मैं कितों इलाज करा। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि मेरा इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाए ताकि मैं तंदूर की दम तोड़ती रिवायत को जिंदा रख सकूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कच्चा खूह के इलाका मखदूमपुर में कदीम रिवायात को जिंदा रखने के लिए घोड़े डांस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। कच्चा खूह के नवा इलाका मखदूमपुर में पौड़ बरादरी के चश्म चिराग कमर जमान की जानिब से जश्न आजादी घोड़ा डांस फ्लड लाइट का इनेकाद किया गया जिसमें पंजाब के 60 मशहूर घोड़ों के दरमियान ढोल की ताप पर डांस के मुकाबले हुए। पंजाब के मशहूर सकाफती खेल घोड़ा डांस, झूमर नाच, लंगोरी और धमाल का कमाल दिखाया गया। घोड़ों का ढोल की थाप पर डांस देखकर शुरका दंग रह गए। 6 घंटे जारी रहने वाले मुकाबलों में सैयद जवाद हुसैन शाह के घोड़ा गुलामी मोहम्मद ने पहली पोजीशन, मियां नूर सुमान काठिया के घोड़ा प्रिंस ने दूसरी पोजीशन, मार अजमल सिपरा के घोड़े अशल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इन मुकाबलों को देखने के लिए इलाका भर से शौकीन लुत्फअंदोज और तालियों से दाद देते रहे। ट्रेनर का कहना था, इस शौक में तकरीबन हमें 1.5 माह हुआ है, हम आए हैं, अभी ये नया है इस मामले में, लेकिन अल्लाह पाक के करम से, पंजतन पाक के करम से ये इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अच्छा चलेगा। हमें खुशी होगी। घोड़ा डांस एक सकाफती खेल होने के साथ साथ महंगा और खूबसूरत खेल है जिसको पंजाब के लोगों ने बरकरार रखा हुआ है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात सहू, सच न्यूज, कच्चा खूह। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर भी जल्द हल एक होगा। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला में भी बारिश मुतवक्के है। लद्दाख में मौसम मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। पंजाब में खिता पोचहार, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिया, भक्कर और डीजी खान में बाज मकामात पर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने कराची में बादल बरसने की पेशगोई की है। बदीन, थर पारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, ठट्ठा, शहीद बेनजीराबाद, सखर, मीरपुर खास, सांगड़ और मिठी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बलोचिस्तान में लसबेला, गजदार, बारखान और गिरतनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। दीगर मकामात पर मौसम गर्म और खुश रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, एबटाबाद, मंसेरा, सवात, बुनीर, पेशावर, मर्दान, कोहाट, करम और बनू में बादल रंग जमाएंगे। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्लाफ अलर्ट जारी किया है। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने के बायस बर्फ तेजी से पिघलने का सबब बन सकती है। गलाफ से बगरोट, यासीन, हुंजा, निगर, शेगर, गाछे और गिलगित के इलाके मुतासर हो सकते हैं। कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। श्रीनगर, जम्मू और बारामूला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कई मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा पुलिस की जानिब से दुनियापुर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। पुलिस, सिविल डिफेंस समेत रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। इसी पे रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास बलूच। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सईद करावसन की हत्या पर दहशतगर्दी के वाकया से निपटने के लिए इमाम बारगाह मस्जिद हैदरिया सजादिया दुनियापुर में मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक एक्सरसाइज में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को जांचा गया। मॉक एक्सरसाइज में DSP सर्कल दुनियापुर गुलाम दस्तगीर की सरबराही और SHO थाना सिटी रोहाम जवेद की निगरानी में पुलिस, सिविल डिफेंस, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू 112 व दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। DSP सर्कल दुनियापुर गुलाम दस्तगीर और SHO थाना सिटी रोहाम जवेद का इस मौके पर कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की सलाहियत और आपस में कोऑर्डिनेशन को जांचना और बड़े हादसा के मौके पर मुनज़्ज़म अंदाज में फ्रेश सर अंजाम देना है। मुश्तरका मशकों के इनकार से बहमी राब्ते के तसलसल में इजाफा होता है। मॉक एक्सरसाइज इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मामनत करती है ताकि किसी भी नागहानी हालात के पेश नजर अवाम को कलील वक्त में रिलीफ पहुँचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, लोधरा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk और देखते रहिए सच।